السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس میں سبق نمبر 44 لیسن نمبر 44۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کو پہلے سنیں گے، پھر آج کا سبق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 43 میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو را کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو را کو پتلی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوتا ہے تو بھی را کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، اور زیر ہوتا ہے تو پتلی آواز میں پڑھتے ہیں۔ چلیے عبد الکریم پڑھ کر بتائیے۔ حمزہ را زبر ار، سین را زبر سر، سین لام زبر سل، سین لام زبر سل، جی ارسل، جی نون الف زبر نا، ارسلنا، اور را کو موٹا کیجیے، اور سلنا، ارسلنا، جی آگے والا پڑھیے۔ قاف را پیش خر، حمزہ را زبر آ، جی خر آ، نون دو پیش نون، قرآن، قرنی قرآن موٹا کر کے، قرآن، چلیے اور اچھا یا غین یہ والا زبر، حمزہ میم، حمزہ پیش او، جی میم، میم را زیر مر، عمر، جی تا پیش تو، عمر تو، جی یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو پتلا پڑھیں گے۔ بہت اچھا۔ رضوان، عمار رضوان آپ پڑھیے۔ عمار، یا غین زبر یا، بیٹے ویسے بتائیے پہلے ورڈ۔ یا غرور کا، یا غرور کا، جی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو کیونکہ را کے اوپر واو ساکن ہے اس را لیے کے اس کو اوپر واو ملایا ساکن نہیں، را کے اوپر سکون ہے، اور را ساکن سے پہلے پیش اگر ہوتا ہے تو را کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کو لمبا موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ جی آگے والا پڑھیے۔ ربما، ربما، ماں کو موٹا نہیں کریں گے، ربما، ماں کو موٹا نہیں، را کو صرف ربما، ربما، حورین ربما، آپ پڑھیے حورین۔ اپنا کیمرہ نیچے کیجیے، چہرہ دیکھ نہیں رہا کوئی کسی کا۔ میں کاٹ لیتا اندرونی حصے میں۔ حورین، پڑھنا جی بہت اچھا۔ یہ والا پڑھیے۔
تو مجھے دو قرآن پڑھیے. قرآن پڑھ کیا ہے؟ برٌ. برٌ برٌ چلیے نصیبہ آپ پڑھیے آگے. نصیبہ. نصیبہ پڑھیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی نصیبہ. نصیبہ. رؤوف را کے اوپر زبر ہے. رونی را. رؤوفن. پڑھیے. رؤوف را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو موٹی آواز میں بولتے ہیں رو. رؤوفن. رؤوف جی. اور تنوین میں ہمیشہ نون کی آواز آتی ہے. یہاں پر تنوین ہے دیکھیے دو پیش ہے تو نون کی آواز آئے گی. آپ نے نون کی آواز نہیں پڑھی تھی. چلیے یہ والا پڑھیے. یعن جی درین جی. دریون. نعمان. نعمان پڑھیے. نعمان آواز سے پڑھیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز سے. من شر. را زیر ری. من شر. جی. نعمان آپ کی آواز نہیں آتی ہے. آپ یا تو اپنا یہ لیڈ وغیرہ لگائیے, اس میں ہیڈ فون لگائیے یا تیز بولا کیجیے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی صحیح سے. چلیے دیکھیں آج کا سبق. آپ اوپر دیکھ رہے ہیں حروف قمری. حروف قمری یہاں پر دیکھیے. حروف قمری ان کو انگلش میں بولتے ہیں مونس لیٹر. مونس لیٹر. حروف قمری دیکھیے. با, جیم, حا, خا, عین, غین, فا, قاف, کاف, میم, واو, ہا, حمزہ, یا. آپ نے دیکھا ان کو حروف قمری بولتے ہیں. آپ کو انہیں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اپنی کاپی پہ لکھیں گے ان کو اور ان کو نام کے ساتھ یاد کریں گے. اب اس میں ایک چیز یہ سمجھیے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہے, الف اور لام بنا کر ہم دکھا رہے ہیں. دیکھیے اگر کسی ورڈ کے شروع میں الف لام ہے, اگر کسی ورڈ کے شروع میں الف لام ہے
اور उसके बाद अलिफ लाम के बाद, यहाँ हम बना रहे हैं, देखिए अलिफ है और फिर लाम है। अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई भी हर्फ होगा, अलिफ लाम के बाद अगर इनमें से कोई भी हर्फ होगा, अलिफ लाम के बाद अगर इनमें से कोई भी हर्फ होगा तो लाम के ऊपर हम सुकून पढ़ेंगे। लाम के ऊपर क्या पढ़ेंगे? सुकून। लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे। अगर कोई वर्ड है, जैसे हम यहाँ पर कोई एक हर्फ बना रहे हैं, यहाँ पर साथ में देखिए, यहाँ पर इसी वाला शुरू वाले के साथ बना रहे हैं, शुरू वाला जो लफ्ज है उसी के साथ बना रहे हैं। शुरू में है बा, बा के साथ जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे करके लिखते हैं, यहाँ पर देखिए बा, बालिक जबर बा और आगे बा है फिर से। तो यहाँ पर अगर अलिफ होगा और लाम होगा तो लाम पर हम क्या पढ़ेंगे? सुकून, क्योंकि देखिए बा है बाद में, अलिफ लाम के बाद क्या है? बा है। और हमने बताया था अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई भी हर्फ होगा तो लाम पर सुकून पढ़ना है। और अलिफ से पहले अगर कोई हर्फ होगा, अलिफ से पहले कोई हर्फ होगा तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर वाव है तो हम इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वल बाब ऐसे बोलेंगे, वल बाब, लाम पर सुकून पढ़ेंगे। फिर से समझिए कि अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो इसमें अलिफ लाम में जो लाम है उस पर सुकून पढ़ेंगे। अलिफ लाम में जो लाम है उस पर सुकून पढ़ेंगे। और अगर हरूफ शमशी में से कोई हर्फ अगर अलिफ लाम के बाद आएगा तो लाम पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाम पर कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो लाम पर कुछ नहीं पढ़ेंगे। जिसे हम आपको एक बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ता है जो शुरू है, उसी से हम बना देते हैं ता, या ता के नीचे जेर है, या और या के ऊपर सुकून, नून के नीचे जेर, तीनी है ये तीनी। अगर हम इसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे तो अलिफ लाम में से हम लाम को नहीं पढ़ेंगे, और अलिफ से पहले कोई हर्फ होता है तो अलिफ को भी नहीं पढ़ना है। वत्तीनी, यहाँ सीधा बोलेंगे, लाम और अलिफ नहीं पढ़ना है। वत्तीनी, इसको फिर से देखिए, अगर अलिफ लाम के बाद, अलिफ लाम है किसी वर्ड में, उसके बाद अगर इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो हम लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम के बाद अगर इनमें से कोई हर्फ आएगा तो हम लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ेंगे। और अगर ऊपर वाले हर्फ में से कोई हर्फ होगा, हरूफ कमरी में से कोई हर्फ होगा तो हम लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे, लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे। चलिए आगे एग्जांपल्स देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है शुरू में, अलिफ लाम है, अलिफ है लाम है उसके बाद, और बाद में काफ है। आप देखेंगे काफ हमारा इसमें है, हरूफ कमरी में ऊपर, तो हम लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे। वल कमरी, पीछे हमने आपको बताया था कि अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज है उससे पहले अगर कोई हर्फ है तो अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। अलिफ लाम वाले लफ्ज में अगर उससे पहले, अलिफ से पहले कोई हर्फ होगा तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, उसके बाद काफ है, काफ यहाँ पर है हरूफ कमरी में। नोमान, अब्दुल करीम थोड़ा ऊपर ऊपर बैठिए।
काफ है तो यहाँ पर लाम पर क्या पढ़ेंगे, सुकून। वल कमरी, वल कमरी, वल कमरी। जी आगे वाले में देखिए अलिफ लाम है, यहाँ देखिए अलिफ है और लाम है, उसके बाद या है, अलिफ लाम के बाद क्या है, या, और या हमारा हरूफ कमरी में है, तो यहाँ भी हम लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे। वल यतामा, आगे देखिए यहाँ पर अलिफ लाम है और उसके बाद हमजा है, हमजा भी हमारा हरूफ कमरी में मौजूद है, यहाँ भी हम लाम पर सुकून पढ़ेंगे। वल अक़रबीन, वल अक़रबीन, वल अक़रबीन। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद काफ है, और काफ अभी हमने बताया था हरूफ कमरी में है। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम के बाद अगर हरूफ कमरी में से कोई हर्फ होगा तो लाम पर सुकून पढ़ेंगे। मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। आगे देखिए यहाँ पर अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद क्या है, हर मीम, तो मीम हमारा हरूफे कमरी में मौजूद है, तो यहाँ भी हम लाम के ऊपर सुकून पढ़ेंगे। हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पर देखिए आगे वाला हरूफ शमशी का है, अलिफ लाम है, उसके बाद अलिफ लाम के बाद क्या है, हर शीन। नोमान, इसमें तवज्जो दीजिए, अलिफ लाम के बाद कौन सा हर्फ है, शीन है, और आप देखेंगे शीन हमारा हरूफ शमसी में है, इसलिए यहाँ पर अलिफ और लाम, लाम के ऊपर कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़ देंगे। इज़ा शम्सु, सीधा शीन को पढ़ेंगे, जाल शीन जबरदस्त। इज़ा शम्सु, इज़ा शम्सु। आगे वाला हर्फ देखिए अलिफ लाम है, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है, उसके बाद नून है, और नून हमारा हरूफ शमसी में है, देखिए यहाँ पर नून है, तो यहाँ पर हम लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़ देंगे। कानन नासु, कानन नासु, कानन नासु। आगे वाला हर्फ देखिए अलिफ और लाम, अलिफ और लाम है, और उसके बाद क्या है, हर्फ रॉ है, उसके बाद क्या हर्फ है, रॉ, तो रॉ हमारा हरूफ शमसी में है, देखिए यहाँ पर रॉ। तो इसमें हमने बताया था कि अलिफ लाम के बाद हरूफ शमसी में से कोई भी हर्फ अगर आता है तो लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं, लाम को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर रा है अलिफ लाम के बाद हरूफ शमसी में से, इसलिए लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़ देंगे। यक़ूलुर रसूल,
यक़ूलुर रसूल, आगे वाला देखिए यहाँ पर अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद साद बना है, तो साद भी हमारा हुरूफ शमसी में है। देखिए यहाँ पर साद है, हुरूफ शमसी में हमने बताया था कि अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफ शमसी में से कोई भी हर्फ आएगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ेंगे, सीधा साद को पढ़ेंगे। अकीमुस्सलाता, अकीमुस्सलाता, अब देखिए पुराने करीम में हम आपको सिंपल तरीका बता देते हैं। ये तो था अलिफ लाम को पढ़ने का रूल, तरीका था, कहाँ पर लाम को पढ़ेंगे, कहाँ पर लाम को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुरान करीम में क्योंकि एराब लगे होते हैं, जबर से पेश लगे होते हैं, इसलिए कुरान करीम को पढ़ने में, उसके टेक्स्ट को पढ़ने में परेशानी नहीं होती। इसलिए हम आपको आसान तरीका बता देते हैं कि अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज है, कोई अलिफ लाम वाला लफ्ज है, तो उस लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज है कोई, तो उस वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए अलिफ है अलिफ लाम वाले लफ्ज में, तो अलिफ को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को छोड़ देंगे। अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। लाम पर अगर सुकून होता है तो लाम को पढ़ते हैं, वरना लाम को भी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर लाम पर सुकून है, इसलिए लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वाउ लाम जबर वल, अलिफ नहीं बोलना है, वाउ लाम जबर वल, वल कमरी, वाउ लाम जबर वल, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। देखिए अलिफ लाम जहां पर भी होगा वहां पर अलिफ को हमें नहीं पढ़ना है। अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ना है। वाउ लाम जबर वल, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम है, यहाँ भी अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, लाम पर सुकून है तो लाम को पढ़ेंगे। वल, वाउ लाम जबर वल। यहाँ पर एक चीज और समझिए कि दो अलिफ एक साथ जहां पर भी आते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। दो अलिफ एक साथ अगर कहीं पर आते हैं तो दोनों को नहीं पढ़ते हैं, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मीम के बाद अलिफ है और फिर से एक और अलिफ है, तो दोनों अलिफ को छोड़ देंगे, सीधा लाम को बोलेंगे। मीम लाम जबर मल। दो अलिफ एक साथ अगर आएंगे तो दोनों अलिफ को छोड़ देंगे, दोनों अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाला लफ्ज है, अभी हमने बताया था आपको सिंपल तरीका कि अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज है तो उसमें अलिफ को नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी अलिफ को नहीं पढ़ना है। लाम पर सुकून होगा तो लाम को पढ़ेंगे, वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो मीम लाम पेश मुल, यहाँ पर क्योंकि लाम पर सुकून है इसलिए हम लाम को भी पढ़ेंगे। हूँ मुल। आगे वाला देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि अगर दो अलिफ एक साथ होंगे तो दोनों अलिफ को नहीं पढ़ना है, यहाँ भी दोनों अलिफ को छोड़ देंगे। और ये भी हमने आपको बताया था पीछे, यहाँ पर दो अलिफ एक साथ अगर होंगे तो दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को नहीं पढ़ेंगे। और अगर लाम पर ये किसी भी हर्फ पर कुछ नहीं होगा तो उसको भी छोड़ देंगे। अगर कोई हर्फ खाली होगा तो उस हर्फ को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इनको तीनों को छोड़ देंगे। दो अलिफ एक साथ हैं इसलिए दोनों अलिफ को छोड़ेंगे, लाम पर कुछ नहीं है लाम को भी छोड़ देंगे, सीधा शीन को पढ़ेंगे। नौमान आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत अहम सबक है, कुरान करीम पढ़ने में फिर आपको परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगा, इसलिए समझ लो अच्छे से। दो अलिफ एक साथ होंगे तो दोनों को नहीं पढ़ना है। अगर किसी हर्फ पर कुछ नहीं होगा उस हर्फ को भी छोड़ देंगे, उसको भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों अलिफ को छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि दो अलिफ एक साथ होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। लाम पर कुछ नहीं है, लाम को भी छोड़ रहे हैं। सीधा हम पढ़ेंगे शीन से, जा शीन जबर जश, इज़ा शम्सु,
आगे वाला देखिए, अलिफ लाम वाले लफ्ज है, इसमें हमने आपको बताया था कि अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ को नहीं पढ़ना है। लाम पर भी अगर कुछ होता है, सुकून होता है तो लाम को पढ़ते हैं, वरना लाम को भी नहीं पढ़ते हैं। तो लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा नून को पढ़ेंगे। कानन्नासु, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम वाले लफ्ज है, अलिफ लाम वाले लफ्ज में आपको अलिफ को नहीं पढ़ना है। लाम पर अगर कुछ होगा तो लाम को पढ़ेंगे, वरना लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लाम पर कुछ नहीं है, लाम को भी छोड़ देंगे। यक़ूलु रसूलु, नुसैबा सामने देख के पढ़िए आप, यक़ूलु रसूलु। आगे वाला देखिए वर्ड, दो अलिफ एक साथ हैं, हमने भी बताया था पीछे, दो अलिफ एक साथ होंगे, दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को नहीं पढ़ेंगे। और अगर कोई हर्फ खाली होगा तो उस हर्फ को भी छोड़ देंगे, वाव खाली है, वाव को भी छोड़ देंगे। लाम पर भी कुछ नहीं है, लाम को भी छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ से पूरा यहाँ तक छोड़ देंगे और यहाँ पर मीम को सौद से मिलाएंगे, मीम सौद पेश मुस। अकीमुस्सलाता, यहाँ पर वाव खाली है तो यहाँ पर भी वाव को छोड़ देंगे। लाम खड़ा जबर ला है, सिर्फ लाम खड़ा जबर ला बोलेंगे। अकीमुस्सलाता, जी आपको कायदा याद करना है। कायदा ये है, हम एक बार फिर बता रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसको याद कीजिए, कायदे के साथ अच्छे से याद करना है। और हमने आपको आसान तरीका भी बता दिया है, दोनों आप समझ जाइए ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। अगर अलिफ लाम के बाद, अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफे कमरी में से कोई भी हर्फ आता है, अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफे कमरी में से कोई भी हर्फ आता है तो लाम के ऊपर सुकून पढ़ते हैं। अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफे कमरी में से कोई भी हर्फ आता है तो लाम के ऊपर सुकून पढ़ते हैं। और अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफे शमशी में से कोई हर्फ आता है तो लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं। अलिफ लाम के बाद अगर हुरूफे शमसी में से कोई भी हर्फ आता है तो लाम के ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं। हुरूफे कमरी में से कोई हर्फ होगा तो लाम पर सुकून पढ़ेंगे, और हुरूफे शमसी में से कोई हर्फ होगा तो लाम पर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये रूल है, ये कायदा है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। अलिफ दोनों में ही नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ दोनों में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ लाम वाले लफ्ज में अलिफ लाम के बाद हुरूफे कमरी में से कोई हर्फ होगा तो लाम पर सुकून पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफे शमसी में से कोई हर्फ आएगा तो लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा उस हर्फ को पढ़ेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, लेकिन इसको अपनी कॉपी पे लिखना है पहले, उसके बाद याद करना है। कॉपी पर लिखकर फिर याद करना है।